तुम इतना मिलन, कैन यू हियर मी? हेलो मिलन, आवाज आ रही है? मैं ऑडिबल? Yes. और मिलन, कैन यू जस्ट पोस्ट अ मैसेज ऑन द ग्रुप दैट सर इज वेटिंग फॉर पीपल टू ज्वाइन? हेलो मिलन, Yes, sir. एक ग्रुप पे मैसेज डाल देना बेटा कि सर वेट कर रहे हैं, लेक्चर स्टार्ट करना है। सो Yes, sir. 5-10 मिनट्स में मैक्सिमम ज्वाइन करो, है ना? Yes, sir. बच्चों को लिख दो, विल स्टार्ट शार्प एट 4:20। मिलन, मैसेज कर दिया ग्रुप पे? हेलो Hello. तो बहुत गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. मैंने मिलन को भी मैसेज करने बोला ग्रुप पे कि 4:20 हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स को बोलो कि ज्वाइन करे फटाफट, है ना? Okay, sir. Yes, sir. हाँ उनके पास लिंक है ना, लिंक मीटिंग का? सर, मीटिंग तो लीन थे पर अभी वो बहुत मतलब वो सर ने परसों भेजा था ना सर। तो एक थोड़ा बार ऊपर है रिपोस्ट करना, तो मैसेज आने रिपोस्ट लगेगा। रिपोस्ट करना उसको बेटा, ऊपर से नीचे। हेलो, ओके सर। हाँ लिंक को रिपोस्ट हाँ सर। कर और लिख दे खाली ज्वाइन बिफोर 10 मिनट्स या ज्वाइन इन 10 मिनट्स, ये ऐसे कुछ डाल दे, है ना? चल, हाँ सर। ओके। ओके।
सुबोध मैसेज कर दिया? Yes, sir. Okay, okay. Let's wait and see how many people more join. Hi, Chinmay, Samruddhi. Good afternoon, Chinmay. Good afternoon, Samruddhi. Can you guys hear me? Vaishnavi. Good afternoon, Vaishnavi. I hope I'm audible. आवाज आ रही है ना सबको? Okay, perfect. ठीक है. We'll wait for 5 minutes, guys. 4:20 मैंने target रखा है. We'll start at 4:20. I'm waiting for students to join. So just pass on the word यार, है ना? बैठे बैठे. Abhya and Abhishek, good afternoon. So guys, where were you all yesterday? कल कोई नहीं था क्लास में. I remember only 3 students were there. Where were you all yesterday? It seems you don't want to tell me where you were yesterday. No problem. Were you in Pakistan? Is that so? Am I audible, students? Can you all hear me? Okay. Why only Chinmay is replying? What about others? Saurabh, Pramod, Abhya, Samruddhi, Vaishnavi. You can at least type in the chat box, guys. Okay. Guys, people who were not there yesterday, for them, we finished articles. We finished articles A and the, and then we started with active and passive voice in the, yesterday's class. Right, Subodh? Can you hear me? I can't hear you. Hello? Yeah, Subodh, can you hear me? Hello? Okay.
Is the PPT visible to everyone? Can you all see the PPT? Boys and girls, can you all see the PPT? Okay. Chalo, let's start. So yesterday we finished articles. We had started with active voice and passive voice. This slide and this slide was done. This was discussed yesterday. So today we'll be starting from this slide, okay? So keep writing, guys. In grammar, I have told you earlier also, you need to write a lot of stuffs. And I have told you that don't miss any of the lectures. Specifically in verbal, I'm saying English is not something that you can learn on your own. You will have to understand stuffs first. Okay, so change of voice. So this is a familiar concept. We all are, acquainted with it. We know what is change of voice. So uh, write this thing, write it down. When a sentence is changed, when a sentence is changed from an active voice to passive voice, when a sentence is changed from an active voice to a passive voice, comma, the object of the verb in the sentence turns into the subject of the verb. Okay, so people over there in my grammar class, earlier, if you remember when I discussed sentences with you for sentence, I had taught you that it is made up of three things: subject, verb, and object. Do you all remember this? Quick reply on this. Can I get a quick reply on this one? Do you all remember this? Any sentence is made up of three components: subject, verb, and object. Okay. So change of voice, it tells you when a sentence is arranged from an active voice to a passive voice, active to passive, the object of the verb in the sentence turns into the subject of the verb. So इसका मतलब क्या है? जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है. The object of the verb in the sentence turns into the subject of the verb. Let us look at the example. Huh? We'll understand it better. I took Rita to the hospital. So guys, I want you all to reply in the chat box and tell me which is the subject in this sentence and which is the object. Tell me the subject and object in this sentence. I took Rita to the hospital. Chinmay says subject is I. Very good, Chinmay. And object is what? No, object is not Rita. Chinmay, object is hospital, hospital. Okay, so this has basically, if you remember, I taught you, this has two subjects in it, direct and indirect. Do you remember that? I had taught you in the first class, first session, Chinmay. So you are right. Rita is an indirect subject, but not a direct subject. The direct, sorry, object. My bad. Direct object. So hospital is direct object. Rita is indirect object. So object becomes the subject. So see, the passive voice would be Rita was taken to the hospital by me. So I, the subject I becomes me, becomes the object.
Okay. I bought some toys. Some toys were bought by me. By me again. So remember, whenever you convert a sentence or change an active voice to passive voice, remember by followed by the subject noun or pronoun. Noun or pronoun. Remember, by is always followed by the subject noun or pronoun. ठीक है? अगर ये I के जगह, my question to all of you is, I के जगह यहाँ पे he होता, he bought some toys, तो ये सेंटेंस क्या होता? टेल मी गाइस, ये सेंटेंस क्या होता? He bought some toys. Some toys were bought by, come on everyone, him. HIM, him होता, him. Is this clear to everyone? Is this clear to everyone? I said अगर ये सेंटेंस he bought some toys होता, तो पैसिव वॉइस क्या होता है इसका? Some toys were bought by him. Right, students? Is this clear to everyone? So guys, are you done writing this down? Are you done writing this down? ये लिख के हो गया ये वाला पूरा? Okay. Okay, Chinmay. Take a minute, finish it and then let me know. चिन्मय लिख के हो जाए तो बताना डन करके. Chinmay, are you done writing this? Writing the examples? Okay, let's move ahead. Okay, next. I want you to write this thing. When a sentence contains an indirect as well as a direct object. When a sentence contains an indirect as well as a direct object, either object turns into the subject of the verb. चिन्मय, अभी समझ आया ये रूल जो हमने देखा वो वाले एग्जाम्पल में? Either object turns into the subject of the verb. Perfect. दोनों ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है. ठीक है. Example: Miss Daisy gave me a book. Gave me a book. So a book was given to me by Miss Daisy is correct. ये एकदम सही वाला है. Okay. Okay. So next, a book was given to me by Miss Daisy is the passive form. And so ये जो sentence है, Miss Daisy gave me a book, इसका दो पैसिव फॉर्म पॉसिबल है. पहला है, अभी देखो यहाँ पे, इन दिस केस बुक एंड गेव मी. चिन्मय बता मुझे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है दोनों में? बुक कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट?
Yes, very nice. Book is the direct object. Me is the indirect object. So this rule says when a sentence contains both direct and indirect object, either object turns into the subject of the verb. दोनों में से कोई भी subject बन सकता है. तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल, दो पैसिव वॉइस के ऑप्शंस है, और करके लिख लो. दोनों में से कुछ भी करेक्ट है. पहला है अ बुक वॉज गिवन टू मी बाय मिस डेजी. सेकंड है आई वॉज गिवन अ बुक बाय मी मिस डेजी. Okay, so in the above example, a book, which is a direct object, I, which is an indirect object, becomes the subject of the in the passive voice. Okay, so basically indirect I नहीं है, indirect me ही है, but passive voice में me जो है it becomes I. Remember, me I बन जाता है. Remember that. Active to passive में. Okay, next. Sentences in the passive voice include a by the phrase. ये मैंने आपको तो बताया है ना. I told you this rule a while ago. By के बाद यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो आ जाता है. कर्ता बोलते हैं ना, एक्शन, डूअर, डूअर. So by the phrase which follows the verb if the agent of an action is named, and the agent of the action is always in the form of the object of the preposition in the phrase. Remember this. Write it down. Keep writing, guys. Keep writing. And the last point, once you're done writing this much, your last point copy karo. The passive form of a verb are created by adding a form of the verb to be to the past participle of the main verb. The passive is also used in various tenses. ये लिख के लो पूरा. Let me know once you're done writing, guys. Boys and girls, done writing? Are you done? Okay. Next. This is a very important table.
Please take a picture of this. Take a screenshot of this table. Please take a screenshot of this table. Are you done? Have you taken the screenshot? Guys, please be active in replying, okay, in the chat box. Saying yes or no doesn't take long. Because if you don't reply, if you don't say anything, I will not get to know whether we are together or not. I hope I am audible to everyone. Chinmay, am I audible? Hello? Yes, sir. Where is everyone? Why is nobody replying? क्या हो गया? सबका ब्रेकअप हुआ है क्या? सबका एक साथ ब्रेकअप हुआ है, मेरे को लग रहा है ऐसा. उदास आत्मा की तरह क्या बैठे हैं सब लोग क्लास में? जो सब तरफ लिख रहे होंगे सर. ऐसा लिखता है कोई इतना मग्न हो के? एक यस नो लिखने में. वाई और एन लिखो ना, वाई और एन. पूरा यस लिखने पे नहीं बोल रहा. मेरे को ऐसा लग रहा है सबका ब्रेकअप हुआ है, पक्का बता रहा है. मैं ऐसा ना, उदास ब्रेकअप के बाद ही होता है आदमी कि भंड होके बैठते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा दुनिया में क्या चल रहा है. बस वही मेरा था चला गया, वही मेरी थी चली गई. पढ़ाई करो. करियर नहीं बनेगा ना, कोई टिकता नहीं है. यू हैव टू मेक योर सेल्फ गुड. क्वालिटी बनाना पड़ता है अपना. अभी भाई आया देखो, जयंती पुरोहित. यस, दैट्स द स्पिरिट जयंती. दैट इंडिकेट्स कि तेरा कोई ब्रेकअप नहीं हुआ है. परफेक्ट. चलो अभी करो यार, थोड़ा एनर्जी दिखाओ. शो सम एनर्जी गाइस. ओके, ये ले लिया स्क्रीनशॉट, इसका ले लिया. ठीक है, अभी एक टेबल को देखो ध्यान से. इसका क्या पर्पस है? ओके, प्रेजेंट टेंस में अभी मैं पढ़ूंगा वैसे मेरे साथ देखना. चिन्मय एक बार अनम्यूट कर और ये रीड कर जो मैं बोल रहा हूँ. Yes, sir. बोल. द मैन The man इज स्कैर्ड. is scared. The man is क्यों? scared. क्यों? मैन सिंगुलर है, बराबर ना? लेकिन मैन प्लूरल होगा कि नहीं? हाँ. तो क्या होगा? द मैन Are आर scared. स्कैर्ड. वेरी नाइस. समझ आया तेरे को? हाँ. अब प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है अगला. क्या है? प्रेजेंट Present परफेक्ट perfect टेंस. tense. अब ये हमने स्कूल में पढ़ा था. टेंसेज में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब आता है तो हैव, हैज और हैड का यूज करते हैं हम, राइट? हाँ. हाँ. और जब हम अपना प्रोनाउन जो ही शी इट होता है तो हम उसके साथ क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव, हैज यूज करते हैं. करेक्ट? हाँ. और हैव किसके लिए यूज करते हैं? आई वी यू दे प्रोनाउन के लिए. करेक्ट? अभी द मैन पहला देख. द मैन. करेक्ट? हाँ. मैन मतलब एक आदमी ना, एक मर्द. करेक्ट? Oh. तो वो ही कैटेगरी आएगा कि नहीं? ही हुआ ना. हाँ. तो इसके साथ कौन सा लेंगे हम? हैज बीन या हैव बीन? बता मुझे. The man has been. हाँ, सिंगुलर है इसीलिए. द मैन हैज बीन स्कैर्ड और द मेन हैव बीन Have स्कैर्ड. been scared. इज दिस क्लियर? परफेक्ट. Yes. चल अब Yes, मेरे sir. को अगला भी पढ़ के बता ऐसे ही, और लास्ट The तक man. पढ़ेगा तो. हाँ, The man was scared. परफेक्ट. The men were scared. द मेन मेन नहीं, The men. मैन. हाँ, The मैन men कितना अच्छा बोला अभी. परफेक्ट. द मेन वर scared. स्कैर्ड. अगला. Past perfect. The man had been scared. वेरी नाइस. The men had been scared. हाँ, तो पास्ट परफेक्ट में हैड और हैड दोनों जगह सेम रहता है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल Plural. हो. समझ आया? हाँ. नेक्स्ट. फ्यूचर. Future tense. The man will be scared हाँ, and the men will be scared. फ्यूचर में तो विल भी रहता है कि नहीं? हाँ. हाँ. फ्यूचर परफेक्ट. The man will have been scared हाँ, द मैन or विल the हैव men बीन will have स्कैर्ड. been scared. अभी एक बात बताओ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस गाइस याद रखना है एवरीबॉडी. मैं और चिन्मय जो बात कर रहे हैं, सुनो हमारे इंटरेक्शन को. तो चिन्मय तू ये बात मानता है ना, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है ना, ये है हाँ. कि नहीं?
ये हम कभी यूज करते हैं बात करते हो? नहीं. अरे अपने को नॉर्मल इंग्लिश बोलने नहीं जमता प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में, तो फ्यूचर परफेक्ट अपन क्या कहाँ से यूज कर लेंगे, बताया कि नहीं? Yes sir. तो फ्यूचर परफेक्ट यूज करने आना चाहिए, है ना? तो सॉर्ट ऑफ इसका एग्जांपल देता हूँ कैसे यूज कर सकते हैं. आई विल हैव बीन रीडिंग द टेक्स्ट बुक बाय टुमारो. समझ आया क्या? I will have been हाँ, आई reading विल हैव बीन रीडिंग अ टेक्स्ट बुक tomorrow. आफ्टर अ मंथ, ऐसा सब करके. तो ये तेरा ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया. समझ आया? हाँ. आई विल हैव बीन डूइंग दिस टुमारो, मतलब मैं कल भी यही चीज करता रहूंगा. समझ आया? वैसा सॉर्ट ऑफ. ठीक है, आगे हाँ. पढ़ो, अगला पढ़ो. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. प्रोग्रेसिव Present. मतलब कंटिन्यूअस हो गया. ठीक है ना? हाँ. कंफ्यूज मत होना. हाँ पढ़. The man is being scared. वेरी The, नाइस. the men are being scared. आर बीइंग स्कैर्ड. परफेक्ट. बीइंग है ना, बीइंग याद रखना. Yes ठीक sir. है, नेक्स्ट. Past progressive or continuous. The man was being scared एंड द and the मैन. men मैन. were being हाँ अभी देख, तू were- मेन बोलता है. तू क्या बोलता है? मेन. हाँ. तू बोल मैन, बोल मेरे साथ. Men. हाँ देख, तेरा इंग्लिश कितना अच्छा हो गया अभी. अभी मैन बोला सही लगा. हाँ. अभी तेरे को मैम बोलने बोलेगा तो तू क्या बोलेगा? मेम. नहीं सब मैम ही बोलता है. मैं हाँ तो थोड़ा उधर क्यों नहीं मेम बोलता है? भूतनी के. ठीक है, तो उधर उधर जब मेम नहीं बोलता है तो इधर क्यों मेन बोलता है? हाँ. उधर जो मैम बोला वैसा इधर बोल मैन. बराबर ना? अभी Yes sir. कितना अच्छा लगा देख. वेरी नाइस. गुड गुड. थैंक यू चिन्मय. गुड जॉब यार. सुपर. Thank सो you. आई नीड अ क्विक रिप्लाई फ्रॉम एवरीवन. समझ आया सबको ये टेबल क्या है? एवरीबडी जस्ट राइट वाई वाई वाई. तुम लोग ना क्वीन एलिजाबेथ के वंश हो, डिसेंडेंट हो. तुमको दर्द होता है लिखने में. हाँ देखो, वाई लिखने में अब फटाफट रिप्लाई आ रहा है. ठीक है चलो. ओके चलो. गाइस एक चीज समझो यार, आई एम हियर फॉर यू गाइस. इफ यू गाइस अंडरस्टैंड देन आई एम ओके. आई डोंट हैव एनी इश्यूज. तुमको जो करना है करो, ठीक है, बट पढ़ते रहो. मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था पढ़ाई करो, पार्टी हार्ड स्टडी हार्ड. मैंने सिंपल मोटो बता दिया है. पढ़ाई के वक्त दबा के पढ़ो, पार्टी जब करते हो दबा के पार्टी करो. कोई कुछ नहीं बोलेगा. ठीक है, नेक्स्ट. ओके गाइस, ये लिखो अगला रूल. ये रूल है, ग्रामर के रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया. अ पैसिव वॉइस डज नॉट नेसेसरली कंटेन एन एजेंट ऑफ द एक्शन. एन एजेंट ऑफ द एक्शन, इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखना. एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस है, द टेररिस्ट बॉम्ब्ड द सिटी. चिन्मय आज तेरे को वॉलंटियर करना पड़ेगा थोड़ा सा. तो चिन्मय मेरे को बता, टेल मी वन थिंग. द Yes sir. टेररिस्ट बॉम्ब द सिटी, करेक्ट ना? हाँ. ये रूल क्या बोलता है पता है? अगर ये रूल जिसको नहीं पता है वो पता है ना कैसे इसको पैसिव में करेगा. तू पैसिव में कर. चल रूल छोड़ दे, इसको पैसिव में करेगा तो क्या मिलेगा? द सिटी The वाज city was bombed by the द terrorists. टेररिस्ट. वेरी नाइस. ये समझ आया ना? हाँ. और ग्रामर क्या बोलता है ना कि अगर एजेंट ऑफ द एक्शन, if it is contained, if it is already there or understood ना from the sentence, then you should not use it. तो अभी देख यहाँ पे the city was bombed, this is the passive voice ये वाले का. बट अपन करते तो क्या करते? by the terrorists लिखते हैं ना, राइट? Yes sir. मुझे एक बात बता, ये बॉम्ब क्या ये चॉकलेट खाने जैसा काम है? मतलब नहीं. तेरा मन नहीं किया, तूने कॉलेज पे बॉम्ब डाल दिया, आज बोर मार रहा है बॉम्ब डाल देता हूँ, ऐसा नहीं होता ना? हाँ. करेक्ट ना? ऐसा कभी नहीं होता. तो ये ऐसा चीज है कि ये सुनते ही पता चलता है कि ये टेररिस्ट एक्ट है, राइट? Yes. तेरे मेरे पास तो पैंट में है कि तेरे पॉकेट में? अभी चेक करना ही ना. नहीं. तो मेरा दैट्स माय पॉइंट. सो दैट इज व्हाई एजेंट ऑफ द एक्शन इज नॉट यूज्ड. समझ आया? तो ग्रामर ये बोलता है, बट माय पॉइंट इज अगर तू द सिटी वाज बॉम्ब्ड बाय द टेररिस्ट भी लिखेगा ना बेटा, तो वो रॉन्ग नहीं है, इट इज करेक्ट. अंडरस्टूड? Yes. बट ग्रामर क्या बोल रहा है? इट इज नॉट रिक्वायर्ड. इसलिए देख क्या लिखा है, डज नॉट नेसेसरीली कंटेन. समझ आया? हाँ तो लिख नहीं लिख तेरे ऊपर है, बट दोनों इज ओके. ठीक है, नेक्स्ट. सर्टेन वर्ब्स कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव सेंटेंसेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल चिन्मय, याद रख. सर्टेन वर्ब्स कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव सेंटेंसेस. अंडरस्टूड? अभी देख मैं तेरे को बताता हूँ चिन्मय, ये मत पढ़ना, नीचे का मत पढ़ना, खाली इसको पढ़. क्या है ये? पढ़. I have a car. हाँ अभी इसका पैसिव करना बेटा. Possible नहीं है. पॉसिबल ही नहीं. कैसा होगा? ट्राई करते हैं ना. अ कार इज हैड बाय मी.
वाह, ऐसा इंग्लिश बोलेगा ना बेटा तो धरती छोड़ देने का. अर्थ इज नॉट द प्लैनेट फॉर यू, देन यू शुड गो टू मार्स. समझ आया? बिकॉज हाँ. वो बहुत हाई लेवल इंग्लिश हो जाएगा, हमारे बस का नहीं फिर बोलना. ठीक है. तो यही वो चीज बता रहा है. देख कैसा दिखेगा. अ कार इज हैड बाय मी, ये रॉन्ग है. तो रूल क्या बोलता है? सर्टेन वर्ब्स कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू Passive पैसिव sentence. सेंटेंसेस. ठीक है. अगला देख, शी लैक्स फिनेस. इसका भी पैसिव नहीं होगा. देख ले पैसिव कैसे करेंगे. फिनेस इज लैक्ड बाय कुछ भी है कि नहीं. Hmm. अंडरस्टूड. चल लिख के ले, पहले ये स्लाइड लिखो. एवरीबॉडी राइट दिस स्लाइड डाउन. लिख के लो. हो जाए तो मेरे को बताना. विल मूव अहेड देन. Last two slides, active passive voice is done. After this, I'll start with tenses. The next topic is tenses. So फटाफट लिखते रहो, हाथ चलना चाहिए. एंड अभी y और n का मैंने ऑप्शन दे दिया है, उतना टाइप करो सब लोग. कुछ पूछा तो y बोलने का, yes है तो, वरना n बोलने का. तो दोनों में से जो एक भी रिप्लाई नहीं करेगा ना, दैट शोज यू आर बिहेविंग लाइक एन L. सो डोंट बी एन L. समझ आ रहा है? चलो लिखो जल्दी फटाफट. चिन्मय, Yes, sir. मैं 2 हफ्ते बाद क्या आया, क्लास का अटेंडेंस देख, बच्चे कहाँ चले गए. हाँ सर, आपने इतना इसलिए गायब हो गए. अरे ऐसा मतलब अभी मैं हिमालय थोड़ी गया था. संन्यास लेके बात करते हो तुम लोग भी. अभी कल सैटरडे मैं समझ सकता हूँ कि ऑड डे है, रेगुलर डे संडे होता है. आज मैंने एक्सपेक्ट किया था थोड़े और आएंगे. हाँ सर. अभी जरा ग्रुप पे डाल दो, अगले वीक से आने बोलो. वर्बल का क्लास है ना अपना, ठीक है सर. एवरी संडे फिक्स है, वो चलेगा. मैं 2 हफ्ता थोड़ा काम में था रे, मैं बिजी था, हाँ. सो आई कुड नॉट कंडक्ट. ऐसा मत करो रे, फिर मेरे को लगता है ना तुम्हारा सबका अभी दिवाली में अफेयर हुआ है. दिवाली बाद आओगे ब्रेकअप करके फिर. सर वो दिवाली के काम कर रहे थे सब लोग घर पे. अच्छा, हाँ शॉपिंग वॉपिंग में लगे होंगे. राइट. करेक्ट करेक्ट, आई अंडरस्टैंड. करो करो. ओके डन राइटिंग एवरीवन. सुबोध पाटिल का वाई आ गया. यस. कितने खुश है देखो बच्चे लोग वाई से. वेरी नाइस. हाँ. अभिषेक पतिंगे नया लेटर एन. अच्छा नो नो मतलब नो. हाँ नो नो. हाँ अभिषेक लिख ले आराम से. लास्ट 1 मोर, 1 मिनट और दे रहा हूँ. ये चीनिश पर्सन है. हाँ जाओ तो टेंशन मत. बतलाऊंगी ना मैंने. आएगा पहले तुम चालू है का नेट. So moral of the story is that guys, not every active sentence can be converted or transformed into passive voice. Verb पे depend करता है कौन सा verb है. अगले स्लाइड में मैं आपको थोड़े और verbs बताऊंगा that cannot be changed into passive sentences. Okay, okay चिन्मय, समझ आया? यस सर. Okay, so let's move to the next slide now. अभिषेक हो गया ना? Done? Okay, next slide. So ये टेबल ये ड्रॉ कर लो खाली. Don't take a picture of this, just write it down. Copy this table in your book. So these are the other verbs. मैंने बताया ना अभी लास्ट स्लाइड पे. ये सारे verbs अगर सेंटेंस में है, you cannot change the sentence into passive voice. Remember, जैसे lack, suit, contain,
resemble, equal, agree with, equal, अच्छा equal आ गया, hold, fit, mean, become, you can't change. ये टेबल ड्रॉ कर लो फटाफट। हो गया चिन्मय ड्रॉ करके? Yes, sir. ओके चिन्मय अगला रूल देखे, लास्ट रूल है एक्टिव पैसिव वॉइस का, वेरी क्रूशियल। इसमें जाने के पहले चिन्मय मुझे एक बात बता, मैंने एक बार बताया था मेरे क्लास में, याद है? दैट ग्रामर ये बोलता है ना, अ सेंटेंस कैन नॉट हैव टू पास्ट टेंसेज इन इट, करेक्ट है कि हाँ। नहीं? इसीलिए आई डिडंट, मुझे बता चिन्मय, गॉट होगा या गेट होगा? I didn't get. हाँ क्यों गॉट क्यों नहीं? Go past tense. वेरी नाइस, डिडंट भी पास्ट है, गॉट भी पास्ट है, करेक्ट ना? सो डिडंट के साथ V1 आता है हमेशा, V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट है ना, तो हाँ डिडंट सर। गेट होता है, करेक्ट? अभी इधर भी ये रूल क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना, ये रूल ये बोल रहा है, अगर एक सेंटेंस इफ इट बिगिंस विद एन एक्टिव वॉइस इट शुड एंड इन एन एक्टिव वॉइस, समझ आया? इसका मतलब क्या है चिन्मय, इन वन सेंटेंस यू कैन नॉट हैव बोथ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वो गलत हो जाएगा, राइट? अभी ये एग्जांपल देख, तुझे मजा आएगा, पढ़ के ही हंसने आएगा। माय फ्रेंड डिड नॉट लाइक द ड्रेस बट इट वाज स्टिल बॉट Still बाय हर। bought तो ये देख, by the active purpose. इतना पार्ट ये पैसिव है ना, है कि नहीं? हाँ, और ये क्या है, एक्टिव। active. तो एक एक्टिव एक पैसिव इन अ सेंटेंस, रॉन्ग, कॉम्बिनेशन इज रॉन्ग, समझ आया? Yes, ये sir. रूल क्या बोलता है कि अगर एक्टिव वॉइस में तुम कुछ लिख रहे हो, so you should always write the entire sentence or the paragraph in active voice only, एक्टिव एंड पैसिव मिक्स नहीं करने का, ठीक है? तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ये करेक्ट वर्जन नीचे क्या है, पढ़ो जरा एक बार। My friend did not like the dress, but she still bought it. हाँ ये सही है ना अभी? हाँ, हाँ लिख के लो ये, और नीचे का भी एग्जाम्पल लिख के लो दोनों। चलो ये हो जाए तो मुझे बताओ, विल मूव अहेड। डन, फिर में हो गया।
So 1 minute. हाँ हाँ हाँ, ठीक है. Okay, Kushal, no problem. Continue. Okay. OMG. हो गया? Guys, can we move to the next slide, everyone? Sir, 30 seconds. 30 seconds. Okay. Rice. Yes, sir. Okay. Next slide. Okay. Okay, so guys, this is a dangling modifier. Huh? Remember, this is a dangling modifier. Active voice and passive voice is done, but dangling modifier क्या होता है मैं बता रहा हूँ, एक बार ये देख लो. A dangling modifier that is caused by using the passive voice should be avoided. Okay, so I'll tell you what is the dangling modifier. Observe. Look at this sentence. In order to party, the work was completed early. चिन्मय मुझे एक बात बता, ये इतना पढ़ के सही लगता है ना सेंटेंस ग्रामेटिकली, है कि नहीं? Danny, in order to party, the work was completed. हाँ, सुनने में सही लगता है ना. It sounds correct, right? हाँ. But do you know what is the mistake in this sentence? Error क्या है? In order to Subject is missing. हाँ. Who completed the work? तू ये सवाल खुद को पूछेगा ना, who completed the work early? तुझे आंसर मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना, बोल मुझे. नहीं. क्यों? Because subject is missing. Missing. तो इसको बोलते हैं dangling modifier. समझ आया? तो हाँ. करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? In order to party, we completed completed the work. the work early. समझ आया? Yes. ये एरर का ध्यान देना है. एग्जाम में आते हैं ऐसे सेंटेंसेस जो देखने में करेक्ट लगता है एकदम, लेकिन सब्जेक्ट मिसिंग होता है, तो इट इज अ मॉडिफायर एरर. मॉडिफायर्स वैसे आगे सब्जेक्ट एक टॉपिक लूंगा मैं और डिटेल में. अब ये थोड़ा सा बस ऐसा आउटलाइन दे रहा हूँ मैं, है ना, कि क्या होता है मॉडिफायर. ओके, Yes. अगला देखो. नेक्स्ट सेंटेंस. विथ अ प्लान टू अबॉलिश चाइल्ड मैरिज, stringent restrictions were imposed. Stringent मतलब समझ रहा है चिन्मय? Strict Strict. restrictions were imposed. Correct. बट ये फिर से डैंगलिंग मॉडिफायर है. सब्जेक्ट मिसिंग है ना. क्वेश्चन हाँ. क्या है? हु प्लान टू अबॉलिश द चाइल्ड मैरिज. पता नहीं चल रहा ना अपने को. Yes. अब अगला देख, करेक्ट वर्जन देख. विद अ व्यू टू अबॉलिश चाइल्ड मैरिज, द गवर्नमेंट imposed stringent restrictions. Restrictions. Is this clear? Yes, sir. हाँ, लिख के लो, ये लिख के लो. एंड इसके बाद we'll start with tenses. After this we'll start with tenses.
गाइस एक बार लिख के हो जाए ना तो चैट बॉक्स में डी लिखो, खाली डी, YNND अपना रहेगा कोड वर्ड अभी। जिसका भी लिख के हो जाएगा डी लिखना, सो दैट आई नो कि खत्म हो रहा है। Okay, so guys, I hope you all are done writing this. Take a fresh page, अगला title दो tenses. The next topic of discussion is tenses. And tenses form a very vital part of grammar. Okay, it's very critical with respect to grammar. जिसका tenses strong है वो अच्छे से इंग्लिश में बात भी कर सकता है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन भी उसके लिए इजी होगा, एंड ग्रामेटिकल एरर भी अवॉइड होगा. Okay, so write this definition first. Write this definition first. The tense of a sentence indicates the time in which a verb is located. The tense of a sentence indicates the time in which a verb is located.
The tense of a sentence indicates the time in which a verb is located. The tense also indicates, ये भी लिखो, the state or action of the verb. A change in the tense brings about a change in the form of the verb. This is very important. होता है ना, प्रेजेंट टेंस में जब मैं कुछ बोल रहा हूं तो आई से आई एम डूइंग इट, आई एम डूइंग इट. पास्ट टेंस में बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, आई वॉज डूइंग इट. ये देखो एम इज अ वर्ब बाय द वे, और वो वॉज बन जाता है पास्ट टेंस में. करेक्ट. दूसरा एग्जांपल हो सकता है, आई आई डांस. पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, आई डांस्ड. यस और नो, राइट चिन्मय? Yes. ये सब चीजें ध्यान देना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद लिखो, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस. राइट डाउन, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. तो प्रेजेंट टेंस में क्या बना, आई सी. उसी का पास्ट टेंस क्या बनेगा, आई सॉ. एंड फ्यूचर टेंस इसका क्या होगा, आई विल सी. अभी आगे क्या बोल रहा है, ईच टेंस कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट फॉर्म्स. मतलब टोटल कितने टेंस होंगे बोलो मुझे गाइस, परम्यूटेशन करो, काउंटिंग. 3 टाइप्स 12. into 4 सब टाइप्स इन ईच, तो ये 12 हो गया. करेक्ट. तो टेंसेस याद रखो गाइस, देयर आर 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस ऑलवेज. क्या टाइप सब टाइप सब पकड़ के 12 होते हैं. अभी तो मुझे प्रेजेंट टेंस से चिन्मय बता तू, प्रेजेंट टेंस पहले बात करूं मैं, तो 4 फॉर्म क्या बनेंगे इसमें से, पढ़ के बताओ. Simple present, present continuous, present perfect, or present perfect continuous. वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो मुझे एक बात बता, अगर मैं सिंपल में लिख रहा हूं तो आई सी मैंने जो बोला, Hmm. इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या बनेगा. I'm seeing. वेरी नाइस. किसको रे? The screen को. स्क्रीन को. ओके ठीक है. नेक्स्ट इसका बोल, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा. I'm seeing. I am. नहीं. नहीं, Perfect है ना. परफेक्ट तो हैज हैड हैव लगता है ना. हाँ. तो आई हैव, I have been seeing. नो आई हैव सीन. अच्छा okay. I have आई seen. हैव सीन हो जाएगा, है ना. हाँ. और प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई हैव बीन. Seeing. किसको? Screen आई को हैव sir. बीन, हाँ आई हैव बीन सीइंग. So guys, people in the classroom, why am I interacting with Chinmay? So that you can overhear our conversation and understand कि मैं क्या समझाने को try कर रहा हूँ. So is this clear to everyone? सबको समझ आया ये 4? Okay, okay.
चिन्मय लिख के हो गया पूरा ये? Yes, sir. देखो लास्ट में लिखा भी है, हमने जो 12 कैलकुलेट किया ना चिन्मय, वो यहाँ पे लिखा है देखो। Tense in the sentence indicates the time and the form of the verb. Accordingly, a verb can assume 12 different forms. Correct ना? Yes, sir. Let's move ahead. Okay. अभी चिन्मय एक बात बता मेरे को, चिन्मय। हाँ। अभी ये IC का जो हमने कबाड़ा किया ना, कबाड़ा मतलब हमने जो IC वाला जो चीज किया ना, हाँ। तुझे नहीं लगता ये टेबल वही चीज है, खाली वर्ब चेंज करके सी के जगह वॉच कर दिया? Watch किया। हाँ हाँ, सर। अभी एक बार सी कर, इधर डाल के चारों पढ़ जरा। सी डालना है? हाँ, सी डाल और प्रेजेंट टेंस वाला कॉलम पढ़ पूरा। ओके सर। हाँ I see. हाँ I am seeing. हाँ, I have seen. आई हैव सीन हो जाएगा, I have SEEN। seen. हाँ। हाँ, और I have been been seeing. seeing। हाँ, देखा हमने जो बनाया था सही था ना? हाँ। वेरी गुड। अब पास्ट टेंस में क्या होगा? चल वही सी लेके बोल मुझे। I I saw, saw. वेरी नाइस। I I was seeing. हाँ, I had seen. I had seen। सॉ नहीं होता है, देखा गड़बड़ हुआ Seen से, ना? हाँ। ये होता है, टेंस ऐसा होता है, ठीक है? दिल से इमोशनल होके बोलेगा ना तो गलत होएगा। हाँ। I had been seeing. I had been seeing। वेरी नाइस, वेरी नाइस, करेक्ट। अगला फ्यूचर का बता दे सी लेके। I shall see. वेरी नाइस। I shall be seeing. सीइंग, वेरी नाइस। I shall have seen. हाँ, सीन होगा। इतना हाँ। समझ जा, हैव, हैज, हैड के साथ ना V3 लगता है हमेशा, V3 फॉर्म। हाँ। अभी एक चीज देख, V1 V2 V3 तेरे को मालूम है वर्ब का क्या होता है? तो ये समझ के ले, V1 V2 V3 आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ब्स, ठीक है? हाँ। पहला क्या होता है V1, इसको बोलते हैं सिंपल Simple. प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट। अभी ये देख ध्यान से, इसके बाद तेरे को कंफ्यूजन नहीं होगा। इसको क्या बोलते हैं? V1 मतलब क्या हो गया? सिंपल Simple प्रेजेंट। present. V2 मतलब सिंपल पास्ट। Simple past. और V3 पता है क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल। हम्म। पास्ट Participle. पार्टिसिपल, है ना? तो हर एक वर्ब का 3 फॉर्म होता है, याद रख। अब सिंपल प्रेजेंट में सी को क्या बोलेंगे? सी बोलेंगे ना? हाँ। सिंपल पास्ट में सी वर्ब जो है वो क्या बन जाएगा? सॉ। So. पास्ट पार्टिसिपल में क्या बनता है? सीन बनता है। हाँ। तो क्या बना? सी सॉ सीन। See saw seen. हाँ, अगर ये याद नहीं होगा तो कोई सेंटेंस माइका लाल नहीं है जो बना सकता है इंग्लिश में। समझ आया? हम्म। तो वर्ब फॉर्म्स पता होना चाहिए। इज दिस क्लियर? Yes sir. है ना? अभी देख, इसका क्या होगा बोल? सिमिलरली गाना गाना, सिंग हुआ पहला। Sing. इसका बोल sang। Sang. फिर Sung. sung। वेरी नाइस। अब समझ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? अब Yes. तू जिनमें क्लास के बाद चाहेगा ना तो ऐसा टेबल आता है 100-200 वर्ब्स का। हाँ। सारा टेबल अगर तुम पढ़ लोगे ना, तुमको लाइफ में कभी सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ आया? अब सिमिलरली Yes, sir. देखो, रिंग, रैंग, Rang. रंग, Rung. ड्रिंक, ये तुम लोग रिलेट कर पाओगे अच्छे से। ड्रैंक, और तीसरा Drunk. ड्रंक। देखो कोई और बोला ड्रंक पीछे से, भावना पहुंची, कौन था? देखा, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। समझ आया? सो दिस कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। अभी ये मैं करने लगूँ तो फिर 2 दिन भी कम पड़ेगा तुमको पढ़ाने में। समझ आया? Yes. sir. तो गूगल करने का पता है क्लास के बाद क्या ढूंढने का? इसको गूगल पे मिलता है, सर्च करने का, लिस्ट ऑफ इर्रेगुलर वर्ब्स। क्या बोलने का? List of irregular इर्रेगुलर verbs. वर्ब्स। सर्च करोगे पूरा लिस्ट निकल के आता है, चट्टा बट्टा बाहर आ जाएगा, ठीक है? Yes sir. और फिर सारा पढ़ लेने का, वो याद होना चाहिए। ड्राइव का क्या होगा बोल मुझे, चिन्मय बता ड्राइव का। हाँ sir. Drive. हाँ, Drove, वेरी नाइस। तीसरा driven, ड्रिवन। किसने बोला ये? Driven. Kushal. ओहो, राइसोनी टॉपर ही है कुछ, है ना? वेरी नाइस। वेरी गुड, वेरी गुड। बट एकदम सही बोला चिन्मय। समझा क्या? तू फंसा थोड़ा Yes, सा, sir. देखा तू अटका। तो हाँ। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, याद रखना ये चीज, है ना?
Yes, sir. सिमिलरली राइड अगर होता है तो राइड, रोड, रिडन होता है। Written होता है. तो अभी एक चीज डिफरेंस समझो एवरीवन गाइस, कुशल, मैं और चिन्मय जो बात कर रहे हैं ना, ये हम तीनों नहीं कर रहे, गप्पे नहीं लड़ा रहे, सबके लिए ये। कुछ डाउट हो प्लीज पूछना, ठीक है। अभी राइड और ड्राइव में फर्क क्या है मैं बता रहा हूँ, याद रखना। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ बाइक, तुम बाइक का बात कर रहे हो ना, टू व्हीलर, तो राइड यूज करने का, समझ आया। Yes, sir. और कार की बात कर रहे हो, फोर व्हीलर, तो ड्राइव का यूज करने का। इज दिस क्लियर? कुशल समझ आया? Yes, sir. पर अपने भारत में सब चलता है, मालूम है ना, ड्राइव राइड सब हम्म। सेम है सबके लिए। बैलगाड़ी पे भी, अरे आई ड्रोव यार 20 किलोमीटर ऑन माई बुलक कार्ट, समझ आया? तो ये याद रखना डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। ड्राइव इज फॉर फोर व्हीलर, राइड इज फॉर टू व्हीलर, ठीक है। बाइक राइड होता है, बाइक ड्राइव होता है कभी, नहीं सर. कार ड्राइव होता है ना। हाँ हाँ, सर. इसीलिए। चलो अब ये समझ आ गया। इसका फोटो ले लो या लिख लो। ये टेबल बनाया क्या तुम लोगों ने? नहीं सर, अब तक नहीं. करो, चलो इसको बनाओ, फिर आगे बढ़ेंगे। कुशल लिखते रहना बेटा, हाथ चलना चाहिए। Yes, sir. ग्रामर क्लास में थोड़ा हाथ दुखता है, मुझे मालूम है, बहुत लिखना पड़ता है। Mhm. So let me ask other students. Okay, boys and girls, बाकी लोग जो सुन रहे हैं कॉन्वर्सेशन, आप सबको सब समझ आ रहा है ना? आर वी टुगेदर बॉयज एंड गर्ल्स? ऑल गुड? नो डाउट्स, राइट? ओके ओके। गर्ल्स, व्हाट अबाउट द गर्ल्स? आई डोंट सी गर्ल्स रिप्लाइंग। वैष्णवी, समृद्धि, समीक्षा, सो फार सो गुड ना? कोई इश्यूज नहीं ना? बच्चा लोग बताओ मुझे। वैष्णवी, समृद्धि, समीक्षा, तीनों है क्या? आवाज आ रही है उनको मेरी? ये तीनों ना पक्का डीमार्ट में है, मेरे को लग रहा है। दिवाली शॉपिंग चालू है फोन पे। अच्छा, नो इशू है। वैष्णवी का रिप्लाई है, ओके। ओके, समृद्धि का भी है, ठीक है ठीक है ठीक है। समीक्षा इज स्टिल ऑन साइलेंट, कुछ बोल नहीं रही। ओके चलो डन, आगे बढ़े। लेट्स मूव अहेड। चिन्मय हो गया ना? कुशल? हाँ sir. Yes, sir. ओके। अब इसका मैं चाहूंगा आप लोग फोटो ले लो, क्योंकि मैंने अभी ये जो टेबल चिन्मय पढ़ाया ना, ये Yes, sir. इसमें सब कुछ मैंने देख 12 के 12 कवर कर दिए, दिख रहा है? हाँ. कैसे? ये देख, ये 4 और ये 3, हुआ ना 12? Yes, sir. हाँ, अभी टेंसेस में इसके बाद मैं सीधा बोलता हूँ कि तुम लोग पीपीटी का फोटोज ले लो, क्योंकि अभी देखो ना, ये सिर्फ अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, समझ रहे हैं? अभी ये लिखते बैठोगे तो हो गया तुम्हारा हाथ, फिर ऐसा बलिदान करना पड़ेगा तुमको। जस्ट टेक अ फोटो ऑफ दिस एंड इसको रीड कर लेना, ठीक है? Yes. अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे बनता है वो तुमको समझ गया है ना? सो एवरीबॉडी प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज स्लाइड्स। हाँ, मैं टेंसेस इतना पढ़ाने के बाद फिर टाइम वेस्ट नहीं करता, आप रीड करोगे अभी आपको समझ जाएगा। जो मैंने लिस्ट ऑफ इरेगुलर वर्ब्स बोला, प्लीज उसको डाउनलोड करना क्लास के बाद गाइस, प्लीज डाउनलोड इट। एक बार पढ़ना, आपको बहुत मजा आएगा। थोड़ा डेमो मैंने आपको अभी दिया, रिंग रैंग रंग, ड्रिंग ड्रैंग ड्रंग, सिंग सैंग संग, समझ आया? करते बैठने का पूरा दिन। फीड फेड फेड, ऐसा सब बहुत सारा है। प्ले प्लेड प्लेड। अभी कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं गाइस, याद रखना, जिसका V2 V3 सेम होता है। जिनमें समझ आ रहा है? कुशल? हाँ sir. हाँ, V2 V3 सेम होता है ना कुछ वर्ब्स के। अभी जैसे एग्जांपल प्ले हो गया, प्ले का V2 क्या होगा? प्लेड, राइट? हाँ. उसका V3 भी Played. पास्ट पार्टिसिपल भी प्लेड ही होता है, प्ले प्लेड प्लेड, ठीक है? वो चीज है। और कुछ ऐसे होते हैं जिसका तीनों सेम होता है। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं कुशल जिसका V1 V2 V3 तीनों सेम होता है। आइडिया है? ऐसा कोई एग्जांपल याद आ रहा है? No sir. कट 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 कैसे बोल गया? अभी तुझे पता है आधा इंडिया बोलता है आई कटेड माई केक,
अभी कटेड वर्ड है क्या कोई, बताओ मुझे। नहीं ना, हाँ। तो कट 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 सेम होता है, ठीक है। आईएनजी फॉर्म ठीक है, कटिंग का बात नहीं कर रहा मैं, है ना, मैं कट का बात कर रहा हूँ। सो कट, कैट, कटेड ऐसा नहीं होता है गाइस, याद रखना। अपने मन का घर का खेती नहीं चलाने का। पंकज ने शेयर किया है एक वेरी गुड एग्जांपल, रीड। यस पंकज, रीड होगा ना, रीड का क्या होगा, रीड 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 ही होगा, राइट पंकज, करेक्ट। पंकज कैन यू हियर मी? रीड का भी रीड, हाँ, प्रोनाउंसिएशन विल ओनली चेंज, करेक्ट, वेरी नाइस पंकज। पास्ट टेंस में जब मैं बोलूंगा तो मैं रेड बोलूंगा, रीड का रेड हो जाएगा, तो रीड रेड रेड। ओके, कुशल समझ रहा है? हाँ रीड रेड रेड, ओके। वैसे रन का भी होता है, रन रैन रन। अभी रन का क्या पंगा है, V1 V3 सेम होता है, V2 चेंज होता है, रन रैन फिर से V3 में रन हो जाता है, समझ आया? तो सेंटेंस में यूज करना है तो कैसे बोलेंगे, आई हैवंट रन सो मच इन माई लाइफ, समझ आया? मतलब मैं इतना ज्यादा कभी मेरे लाइफ में भागा नहीं हूं, है ना, अंडरस्टूड? हाँ सर। समझ आ रहा है कुशल? हाँ सर। ओके, चलो अभी स्टार्ट टेकिंग स्क्रीनशॉट्स ऑफ दी स्लाइड्स, हाँ, जो मैं बोलते जाऊंगा, और बस उसको एग्जाम्पल से पढ़ लोगे तो आपको समझ जाएगा। चलो, टेक अ फोटो ऑफ दिस एंड प्लीज टाइप डन, डन इन द चैट बॉक्स। Done. डन, हाँ। Done. ओके, सुबोध पाटिल, कम आएगा, कम वर्ड सही है, बट कम का होगा कम केम एंड कम अगेन, करेक्ट। V1 V3 सेम होगा, हाँ। यस वैष्णवी, वेरी गुड। हिट, हिट इज अनदर वर्ड, हिट 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 ही होता है, हिट हैट। और हड नहीं बोलने का, अपना मराठी वाला होता है ना, हडरे, वो नहीं, दैट्स नॉट इंग्लिश, हाँ। हिट हैट हड, डोंट डू दैट, ओके, हाँ। सो हिट इज राइट वैष्णवी, वेरी गुड। सो इसका फोटो ले लिया, अभी इसका लो, नेक्स्ट। कीप योर कैमरा ऑन, ले स्क्रीनशॉट्स लेते रहो। इसका लो स्क्रीनशॉट अभी। डन गाइस, Done. इसका लो स्क्रीनशॉट में गाइस, कैमरा ऑन ही रखो, हाँ, मतलब बटन पे उंगली रखो, धड़ाधड़ दबाओ फटाफट। मेरे को नेक्स्ट टॉपिक पे जाना है, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। हो गया ये, इसका ले लो अभी, इसका ये वाला क्लिक करो। इसका ले लो, इनमें दिख रहा है ना, ये सब एग्जाम्पल है खाली, और कुछ नहीं है Yes, ना। sir. रीड करोगे तो भी समझ जाएगा। बट वो लिस्ट ऑफ इरेगुलर वर्ब्स प्लीज डाउनलोड करो सब लोग, टेंस Yes, पढ़ने के sir. पहले। टेक अ पिक्चर ऑफ दिस।
इसका लो एंड देन देयर इज वन मोर स्लाइड. डन. Yes, sir. ये लास्ट. Done, sir. Okay. Next topic. Take a fresh page. Direct and indirect speech. And I'm giving you 1 minute break. 1 मिनट का लंबा ब्रेक दे रहा हूँ. 60 सेकेंड. सर हेलो हाँ बोलो. सर मुझे वो थर्ड फॉर्म सिंगुलर रहता है ना सर उसका उसमें डाउट है सर जैसे किसमें बोलो. सर थर्ड फॉर्म सिंगुलर में जो रूल्स रहते हैं ना उसमें जैसे सर एग्जाम्पल सी दे. हाँ यस सर वैसे आई सी करते हैं पर जैसे जब सी या ही आता है तो सी सीज सी वॉचेस ही तो मैं वॉचेस बताता हूँ. देखो क्या हाँ होता है. कुछ नहीं है. घबराने की जरूरत नहीं. ऐसा देख. ये लिख के ले ले. रामबाण इसको बोलते हैं. ठीक है. आई वी यू दे. करेक्ट. यस सर सी बोलेगा या प्ले बोलेगा. चल प्ले ले ले तो प्ले होगा. ठीक है ना. यस लेकिन जैसे तेरा ही शी इट होता है प्रोनाउन. ये 3 प्रोनाउन दिखा अगर तो वर्ब प्लस एस लग जाता है. समझा. तो क्या बन जाएगा. ही शी इट प्लेस. सिंपल. हाँ सर आई वी यू दे प्रोनाउन पे ध्यान दे खाली. बस बाकी छोड़ दे. प्रोनाउन पे आई वी यू दे अगर प्रोनाउन है तो वर्ब सिंगुलर रहेगा. समझ आया मैं Yes. क्या बोल रहा हूँ. प्ले रहेगा. एस नहीं लगेगा वर्ब में लास्ट में. ठीक है. ओके. यस सर बट ही शी इट लग गया तो प्लेस कर देने का. ओके. इज दिस क्लियर. यस तो अगर सर सी है तो क्या होगा. आई सी वी सी यू सी दे सी बराबर. यस सर बट ही सीज शी सीज एंड इट सीज. क्लियर. यस सर अब सिमिलरली मैं तेरे को ये बोल रहा हूँ. देख. एक तेरे को मैं ये दे रहा हूँ ना. एक सेंटेंस. ये देख एग्जाम्पल. तो दोनों में मेरे को ना क्या यूज करना है पता है. बार्क. ये वाला वर्ड यूज करना है ना. यस मुझे एक बात बता. डॉग जो पहला सेंटेंस में है इसका मतलब एक कुत्ता ना. यस तो ये कौन से प्रोनाउन से मैच कर रहा है. पहचानने आना चाहिए. नहीं तो लग गई तेरी फिर. Plural. Means S इट लगेगा. इट से कर रहा है. इट से It. मैच कर रहा है ना. यस तो इट के साथ क्या आएगा. डॉग बार्क्स. बार्क्स हाँ. लेकिन डॉग्स क्या है. बहुत सारे कुत्ते. प्लूरल A. यस बहुत सारे कुत्ते. कौन से प्रोनाउन से मैच कर रहा है वो बता. प्लूरल सिंगुलर छोड़ दे. प्रोनाउन कौन सा मैच कर रहा है वो बता. दे. डे वेरी नाइस. तो क्या हो जाएगा. डॉग्स बार्क. बस ये ओके याद रखना. बैठे याद रहेगा. भूलेगा नहीं. यस सर कुत्ता और भौंकता है. डॉग बार्क्स. बट डॉग्स yes. बार्क. ऐसा बोल. और सर हम जैसे अभी चिन्मय अब हम हाँ. चिन्मय का एग्जाम बैठे हाँ. चिन्मय वॉचेस द स्क्रीन ओके हाँ, सर हम एक ऐसे मिनट, बोलते हैं ये पहले लिख के हो गया. इतना मैं रब करूँ ये. यस सर ठीक है. ये मैं erase कर रहा हूँ. हाँ बोल बेटा बोल. चिन्मय. हाँ सर. चिन्मय वॉचेस द स्क्रीन अगला मुश्किल है. चिन्मय वॉचेस द स्क्रीन द मोबाइल The- स्क्रीन नहीं वॉचेस हाँ. द व्हाट. मोबाइल स्क्रीन Green. हाँ वॉचेस द मोबाइल स्क्रीन. हाँ ठीक है. ओके ये तो हाँ. इसमें क्या डाउट है. सर अभी अभी हम दोनों बोल रहे हैं और चिन्मय थर्ड पर्सन है इसलिए हाँ. इसमें यस आया ना तू मुझे ये बता. तू ये बोलना क्या चाह रहा है यहाँ पे कि चिन्मय मोबाइल स्क्रीन को देख रहा है ना. हाँ हाँ. तो अभी तक तेरा टेंस का एरर हुआ है. समझ आ रहा है. ये हाँ. सेंटेंस गलत है. हाँ ठीक है. Is तो what तुझे she- क्या बोलना चाहिए था. अभी वो देख रहा है ना करेंटली. यस यस यू शुड से. एक मिनट. तुझे आइडली क्या बोलना चाहिए यहाँ पे. चिन्मय Watches इज की वॉचिंग जगह. इज हाँ. वॉचिंग चिन्मय इज वॉचिंग द स्क्रीन. यस करेक्ट यस यस है ना. अब तेरे को अगर वॉचेस वाला ही लेना है ऐसा फॉर्म में तो वॉचेस नहीं ना यार. मतलब वो नहीं. चिन्मय इज वॉचिंग द मोबाइल स्क्रीन. ये समझा. टेंस एरर है. ठीक है. अभी तेरे को ये लेना है. सपोज चिन्मय खेल रहा है गार्डन में. सपोज फॉर एग्जाम्पल. ठीक है. अब खेल रहा है बोलूंगा तो वो क्या होता है. वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ ना. तो मैं क्या बोलूंगा. चिन्मय प्लेज इन Yes, द sir. गार्डन. चिन्मय प्लेज इन द गार्डन. करेक्ट. ये Yes. सही है. हाँ. चिन्मय प्लेड ईडी कर दिया तो क्या बन जाएगा. पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट
हाँ Yes. और इस प्लेइंग कर दिया तो क्या हो गया? Present कंटिन्यूअस, continuous. प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया है ना। और Yes. इसके जगह में क्या करूंगा? वॉज प्लेइंग तो पास्ट Past कंटिन्यूअस, continuous. हैड बीन प्लेइंग पास्ट परफेक्ट Past कंटिन्यूअस। perfect. हाँ और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस करना है तो क्या बोलूंगा? Have been चिन्मय, playing. चिन्मय नहीं, अभी देख, अभी इधर गड़बड़ हुआ है। चिन्मय क्या है? प्रोनाउन क्या है? ही He. होगा ना, ही। Yes. तो ही He के has been साथ playing. हमेशा हैज होता है, हैव नहीं आता। Yes. Sir. समझ आया? हाँ. हाँ तो तू ये लिख के ले ले जो मैं तेरे को बता रहा हूँ, आई वी यू दे, ये लिख के ले, फिर आगे प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। Yes. इसके बाद हमेशा हैव होता है ना। ये Yes. कौन से टेंस के लिए बता रहा हूँ? परफेक्ट टेंस के लिए। Perfect. कोई भी हो, प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर फर्क नहीं पड़ता, परफेक्ट होगा तो हैव होगा। लेकिन जब ही शी इट होता है तो वो क्या हो जाएगा? हैव के जगह हैज। ये कौन है रे पीछे हैज बोला बच्चा? ओके हाँ, तो ही हैज, शी हैज, इट हैज, याद रहेगा। Yes. Sir. I have, we have, you have, they have. Understood? Yes. Sir. Yes. ओए कौन है बैकग्राउंड में? येणार नाही काय येणार नाही? ओके ठीक है, समझ आएगा इस सबको बैठा दिमाग में, है ना। और Yes. Sir. लेकिन एक चीज समझ, एक और कैच इसमें क्या है पता है? अगर ये हैड यूज करने जा रहे हैं ना, HAD, तो याद रख IV UV ये हो या ही शी इट हो, सबके साथ ऐड ही जाता है। I had, we had, you had, they had, she had, he had, it had, समझा? Yes. Sir. have और has हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, समझा क्या? Yes. Sir. हाँ अंडरस्टूड। और कोई डाउट तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। Yes. Sir. हुआ. ठीक है चलो नेक्स्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच तो अगला टाइटल। ये किसी को पता है? थोड़ा बहुत आइडिया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच? गाइस आपको याद है रमेश said, comma, double inverted comma, Suresh is a bad boy. 5 स्टार ऐड याद आ रहा है क्या सबको? मैं रमेश बोल रहा हूँ, कुशल। अच्छा हाँ सर, अभी क्लिक हुआ। हाँ अभी समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ रमेश सुरेश 5 स्टार ऐड रे, है ना। हाँ तो रमेश सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमास में कोट्स में सुरेश इज अ बैड बॉय। अरे बैड डे लिखा क्या मैंने? बॉय लिखना है, वो डे नहीं रे। बैड बॉय। हाँ अब मुझे एक बात बता कुशल, ये कौन से स्पीच में डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है। क्यों डायरेक्ट है बता सकता है? इन्वर्टेड कॉमास में। वेरी नाइस वेरी नाइस। इनडायरेक्ट स्पीच कभी भी इन्वर्टेड कॉमास में नहीं आएगा, समझ आया? ये कोट जो है वो अनकोट हो जाता है, समझ आया? हाँ। तो अगर इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं? रमेश told that सुरेश इज अ बैड बॉय, है ना? हाँ। समझ आया? सॉर्ट ऑफ। तो अभी कोट डबल इन्वर्टेड कॉमर्स निकल गया, तो ये पहचानने का तरीका है। डबल इन्वर्टेड कॉमर्स जब भी आता है तो याद रखना इट इज डायरेक्ट स्पीच। ओके। और क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जाम में, कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच, ऐसा आता है ना, दोनों टू वेज। चलो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट स्लाइड। डायरेक्ट स्पीच, इसका लिख के लो गाइस। When people's actual thoughts or words are reported exactly as they are spoken within quotes, कुशल समझ आया ये वर्ड विद इन कोट्स? कोट्स का मतलब क्या है? डबल इन्वर्टेड कॉमास। वेरी नाइस। When people's actual thoughts or words
are reported exactly as they are, spoken within quotes, the sentence construction is called direct speech. और यही कुशल तो और चिन्ह में तुम लोग ने मुझे भी बताया ना, इसमें डबल इन्वर्ट कॉमा है इसलिए डायरेक्ट स्पीच है कि नहीं? Yes, sir. परफेक्ट, पहचानने का तरीका समझ गया ना? Yes, sir. चलो अभी एग्जाम्पल्स है अभी नीचे, ये वाला दो पहले ये दो एग्जाम्पल कॉपी करो, आगे का बाद में मैं बोलूंगा तब। पहले ये दोनों लिखो, शी सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमास आई एम वेरी टायर्ड एंड देन आई आस्क्ड व्हाट डू यू वांट। राइट इट डाउन, लिख के लो। हो गया लिख के? Yes, sir. अभी एक चीज नोटिस करो, मुझे एक बात बताओ, आई एम वेरी टायर्ड के बाद जो पंक्चुएशन है वो क्या है? फुल स्टॉप है कि नहीं? Yes, sir. और यहाँ पे क्या है पंक्चुएशन, मुझे बताओ? Question mark. क्वेश्चन Question मार्क। mark. अब मुझे बताओ दोनों पंक्चुएशन का पोजीशन क्या है? इज इट आउटसाइड द डबल इन्वर्टेड कॉमास और इनसाइड? Inside. Inside. हाँ, रिमेंबर दिस, इनसाइड लिखना होता है, बाहर नहीं लिखने का, समझ आया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ये छोटी छोटी बातें कोई बताएगा नहीं, याद रखो, है ना? अब ये कोई देख भी नहीं पाया, किसी ने नोटिस भी नहीं किया होगा कि ये अंदर आ रहा है, बाहर क्यों नहीं आ रहा है, कि नहीं? Yes, sir. उसमें भी रूल है, इट शुड बी ऑलवेज रिटन इनसाइड, बाहर नहीं लेने का उसको, ठीक है? चलो नेक्स्ट रूल, अगला रूल लिखो। ये देखो क्या है, पढ़ चिन्ह में इसको, अ कॉमा इज यूज्ड। Between the reporting verb and a direct speech. हाँ, इसका मतलब क्या है? अरे ये शी सेड के बाद दिख रहा है कॉमा है, Yes, अरे sir. इसकी बात हो रही है, समझा क्या? चलो ये लिख के लो रूल, ये रूल लिखो, उसके बाद ये दोनों एग्जाम्पल्स लिखो। Sir, जैसे अभी एग्जांपल में I asked. कॉमा और want- फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास। हाँ. अभी याद करो, रमेश सुरेश का भी मैंने दिया तो मैंने ऐसे ही बनाया ना, रमेश सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमास में सुरेश इज अ बैड बॉय, है कि नहीं? हाँ सर, हाँ नहीं मेरा क्वेश्चन था कि अगर सबसे पहले एग्जांपल में हाँ, दूसरी लाइन और ऐड करनी होंगी तो वहाँ पे फिर फुल स्टॉप अंदर ही रहेगा ना? और मतलब क्या ऐड जैसे करना ऐसे में है? वगैरह रहते हैं, ऐसे में वगैरह जैसे शी हाँ, कुछ तो भी, और उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हो रही है तो फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही फुल स्टॉप आएगा ना उसमें? नहीं एक मेरे को समझा नहीं, शी सेड आई एम वेरी टायर्ड, उसके बाद क्या? उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हो रही है, कुछ भी मतलब रैंडम कुछ भी सेंटेंस है हाँ, तो उस केस में भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही फुल स्टॉप आएगा ना? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब तू शी सेड, जो शी सेड है ना, हाँ. अगर वो जो लड़की है, शी मतलब फीमेल हुई ना, हम्म. अब वो जो भी बोल रही है, अगर उसने दो चीजों का बात किया है तो दोनों चीजें डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आता है। नहीं लेकिन वो एग्जांपल में नहीं, जैसे हम ऐसे वगैरह लिख रहे हैं तो वहाँ पे भी कभी कोट्स करते ना हम हाँ, लोग? तो शी सेड आई एम वेरी टायर्ड के बाद अगर तेरे को नया सेंटेंस स्टार्ट करना है ना, तो वो सीधा आगे नया चालू होगा, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, समझ आया क्या? नहीं तो फुल स्टॉप कहाँ पे, बाहर रहेगा या? नहीं, फुल स्टॉप इधर अंदर ही रहेगा ये। ओके. हाँ, ये अंदर ही रहेगा, समझ आया? बाहर नहीं, इसको बाहर नहीं लेते हैं। ओके सर. एक्सक्लेमेशन भी होता तो अंदर रहता, ठीक है? हम्म. और जो तू पूछ रहा है वो डबल वाला आइडिया अंदर ना, मतलब ये डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर भी दो चीजें आती है, दो सेंटेंस आ सकता है, ठीक है? बट उस हाँ. वक्त हम क्या करते हैं कि फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स विद इन डबल इन्वर्टेड कॉमर्स यूज करते हैं, समझ आया? ओके. अगले स्लाइड पे तेरे को दिख जाएगा, तू देख। हम्म. इतना लिख ले पहले, यहाँ तक होगा तो मुझे बता। नागपुर का वेदर कैसा है अभी? पता नहीं अच्छा सर, है। मैं अमरावती का हूँ. अच्छा, अमरावती क्या? सर ठंड है। सर अच्छा है नागपुर का ठंड weather? बढ़ गई है ना नागपुर में? ठंडी है बस। हाँ. हाँ ठंडी हो गई। मैंने सुना है वहाँ का वेदर बहुत अच्छा होता है, विंटर्स में बहुत सही होता है। यस सर। सर नागपुर में हमेशा एक्सट्रीम रहती है, फिर कोई भी एक्सट्रीम ना? वेदर रहे. हाँ,
और नागपुर में मैंने सुना है कि वहाँ के लोगों की हिंदी बहुत अच्छी है यार। सर बहुत ज्यादा अच्छे हैं। हाँ, बहुत बहुत शुद्ध हिंदी बोलते हैं लोग। अच्छा, अभिषेक लिखता है नहीं सर। ये क्या है? ठीक है, ठीक है। आई हैव नेवर बीन टू नागपुर। कोविड नहीं होता तो आता तुम लोग को मिलने में, पढ़ाने मतलब उधर कॉलेज में। हाँ आया जाएगा, अभी कोविड जाने दो पहले, नहीं तो पता चलेगा पूरा कॉलेज साथ में मेरे क्वारंटीन होगा। पंकज लिखता है यहाँ सब कुछ एक्सट्रीम ही होता है सर। पढ़ाई छोड़ के ना पंकज, की पढ़ाई भी। सर बस एक नॉलेज के लिए बता दूं, हाँ बोलना, आपने पूछना, बोला ना शर्मा कि क्या रहा है? एक्सट्रीम होता है, सेम वैसे ही नागपुर गवर्नमेंट कॉलेज में अभी एक लड़के ने 44 lakhs पर एनम का पैकेज निकाला। क्या बात है, वेरी नाइस। हाँ सोनी में। बट अभी इंडिया 2 या दिन अब्रॉड? पहले। इंडिया इंडिया सोनी इंडिया। में। हाँ वेरी नाइस। और पोजीशन क्या दिया है, डेजिग्नेशन का कुछ आइडिया? वो आइडिया नहीं सर, अभी कल ही टाइम्स ऑफ इंडिया में गया था। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस। हम्म, अरे वही मैं हमेशा बोलता हूँ ना यार, कॉलेज और सिटी मैटर लाइफ टाइम नहीं करता। एक स्टार्टिंग स्टेज में करियर में एक बार कर जाए मतलब। पॉइंट मेरा क्या है, अभी आईआईटी का जो बच्चा है अगर प्लेसमेंट में बैठेगा तो शायद रसोनी वाला 4 लाख या 5 लाख लेगा इंजीनियर, तो आईआईटी वाला 10 लाख लेगा, है कि नहीं? हाँ मतलब फर्क उतना ही होता यस है। सर। 5 साल बाद इंडस्ट्री में जाने के बाद मेरी बात याद रखना, किसी को घंटे से फर्क नहीं पड़ता तू आईआईटी से है या तू रसोनी से या कहाँ से है, समझ आया? तू यस सर। बाद में करियर में ग्रो करता है तेरे काम की वजह से। अगर तेरा काम अच्छा है, तू कंपनी को फायदा करा रहा है, बिजनेस ला रहा है, तो तेरे को कंपनी में तुझे ग्रोथ मिलेगा। अंडरस्टूड? हम्म, ये इंडस्ट्री का बहुत सिंपल फंडा है, लोग इसको पता नहीं क्यों कॉम्प्लिकेट करते हैं, मुझे समझ नहीं आता है। मैं सीआरटी ट्रेनिंग्स भी देता हूँ, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग। सो दैट टाइम मैं कॉलेज के कैंपस में जाके मैं जीडीपीआई के लिए बच्चों को ट्रेन करता हूँ। तो मैं यही चीज हमेशा बोलता हूँ, जो चीज सिंपल है उसको कॉम्प्लेक्स मत बनाओ ना, है कि नहीं? क्योंकि फिर जो चीज कॉम्प्लेक्स होगी उसको क्या करोगे? मतलब उल्टा चलने का डिसाइड ही कर लिया लाइफ में। तो दिस इज द ओनली थिंग। सो ऐसा सोचने का नहीं कभी कि मुझे मिल सकता है कि नहीं। 5 साल बाद सब लोग एक पेज पे आ जाते हैं, याद रखना। 5 to 6 years, once you are in the industry, your work will take you ahead in life and not your college का brand। समझ आ रहा है? हाँ सर। हाँ, अभी देखो मैं तो आईआईटी के भी बेटर कॉलेज से हूँ ना। यूडीसिटी तुमको मालूम है, केमिकल इंजीनियरिंग में एशिया का नंबर 1 कॉलेज है आईसीटी। तो आईसीटी। हाँ हाँ, हाँ मैं खुद एक ब्रांड कॉलेज में पढ़ के आ रहा हूँ, मुझे पता है ना, आई नो इट। वो देखा मैंने, वो लैविश लाइफ भी जिया। सो आई नो इट। ओके, सो इट डजंट मैटर इन द इंडस्ट्री आफ्टर 5 years। अभिषेक, आई एम फ्रॉम मुंबई। सिटी पूछ रहा है मुझे, आप कहाँ से हो सर? मुंबई, मुंबई। ओके, चलो। स्वतेज इज आस्किंग मी सर, वर्ड लिस्ट कौन सा फॉलो करे फॉर जीआरई? अच्छा, ओके। स्वतेज, वोकैबुलरी जो मैंने कराया था उसमें थे तुम क्लास में? यस सर। हाँ, तो वो जो वर्ड फैमिलीज मैंने सिखाया है ना करने के लिए, वो करो। वो तरीका है पढ़ने का, मतलब आई वांट यू टू स्टडी इन दैट मैनर, अदरवाइज तुमको याद नहीं रहेगा, ठीक है? Yes, sir. एंड Actually, sir, I'm learning from Manhattan flashcards. और हाँ, कोई problem? फ्लैश कार्ड्स में प्रॉब्लम वो होगा ना कि 100 वर्ड करने के बाद 50 पहला याद नहीं रहता। एंड जैसे Yes, तू sir. 500 500 में पहुंचेगा ना तो सब भूल जाएगा। Actually, sir, I did 500. उसके बाद में नहीं हो रहा। नहीं याद रहेगा, यू विल फॉरगेट एवरीथिंग। एवरीथिंग, ट्रस्ट मी। 10 वर्ड भी ढंग से नहीं आएगा। इसलिए मैंने जो वर्ड फैमिलीज बताया ना स्वतेज, तुझे बैठ के ना वो वर्ड फैमिलीज बनाने पड़ेंगे, समझ आ रहा है? Yes, sir. अब जब तू फ्लैश कार्ड पढ़ा, सपोज 500 वर्ड्स पढ़ा, तुझे इतना तो पता चला रहेगा ना कि अरे ये 20 एक दूसरे के सिनोनिम है। लेकिन मेरे Yes, को sir. 500 के लॉट में स्कैटर्ड मिला, करेक्ट? Yes, sir. ब्रिंग देम ऑल टुगेदर अंडर वन फैमिली। समझ आया? Okay. तो 500 में से Okay, 20 sir. हट गया, एक फैमिली में हट गया। Hmm. तो 500 का जब तू फैमिली बनाएगा ना, तू देखेगा कि साला 10 ही फैमिली बनाए या 5 बनाए, 10 से 12 मिलेगा तेरे को फैमिली। समझ आया? Yes, sir. हाँ, But actually, sir, वो means जब text completion है ना सेंटेंस sentence इक्विवेलेंस। equivalent. हाँ, So, but sir, actually वो means answer choices में almost 2 options तो वैसे ही रहते कि they have the same meaning. करेक्ट।
Correct. Just like for example hackneyed and Hackneyed means outdated, commonplace. Hackneyed का yes sir. synonym is commonplace, something that has been used again and again. तो cliche उसका synonym होगा. अभी देख, जैसे तूने hackneyed बोला, मैं word family का beauty बताता हूँ. अभी तो सुनना, मैं Yes. तेरे को कितने synonyms दे रहा हूँ, ठीक है ना? Hackneyed, अभी सुनते जाना. Hackneyed, commonplace, quotidian, antediluvian, then तेरा cliche, archaic, banal. Banal पता है? Banal. Yes sir. हाँ Ordinary. हाँ, But ordinary. sir, I want to mention that hackneyed is more negative than banal. So problem फिर वो अगर similar actually नहीं नहीं, we ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. बेनल, हैकनीड एंड बेनल, दे फॉल अंडर सेम फैमिली. नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा नहीं है, ठीक है ना? yes sir. अगर if something is banal, it means it has been used so many times that it has become boring now. समझ आया? बेनल Boring, का yes. मतलब भी वही है. तो अभी मैं Yes. हैकनीड जब बात करूंगा ना, तो आगे पता है मैं किधर जाता, मैं मंडेन फैमिली में भी जाता. Okay. तो ये तेरे को Yes. जीआरई के लिए सीखना बहुत जरूरी है कि Okay. हैकनीड एंड मंडेन आर आल्सो कॉन्टेक्चुअल सिनोनिम्स. Yes sir. जो चीज हैकनीड है वो बोरिंग होगा कि नहीं होगा, मुझे बता. Yes. Yes हाँ, sir. तो वो मंडेन हुआ कि नहीं हुआ. और अगर Yes. मंडेन है तो मैं क्या बोलूंगा? वैपिड. समझ आया? वैपिड इज Okay. अगेन अ हाई फ्रीक्वेंसी जीआरई वर्ड. Okay sir. हाँ, व्हिच मींस डल एंड बोरिंग. समझ आया? Sir, अभी और sir, हाई फ्रीक्वेंसी जीआरई वर्ड बताओ मंडेन का सिनोनिम हैकनीड का. प्रोजाइक. प्रोजाइक. पी आर yes. ओ एस ए आई सी की. सुना है? Yes. हाँ, Yes sir. तो देख, अभी तेरे को चमकेगा जब तू बात करेगा. सो जस्ट गो हाँ, विद द फ्लो. धीरे धीरे जब मैं सेंटेंस इक्विवेलेंट टेक्स्ट कंप्लीशन में आऊंगा ना, हम्म. तुम देखोगे तो पागल हो जाओगे मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना? Yes sir. हाँ, Sir, so don't worry about that. yes sir. I'm practicing text completion. I have करो, completed yeah. Manhattan, but sir मुझे वो Manhattan के questions पूरे बकवास है. हाँ, बकवास लगे ना एकदम. Yes. Actually वो logic easy है वहाँ पे और vocabulary बहुत ज़्यादा hard. हाँ, तो उसका क्वेश्चन जो है कॉन्टेक्स्ट सिंपल देते हैं वो, लेकिन ऑप्शंस उसका डिफिकल्ट होता है, ठीक है? So means practice के लिए कौन सा book refer करना सर? प्रैक्टिस के लिए तुझे करना हो तो पहले तू ये कर सकता है, क्या नाम है अपना, प्रेप नोवा एक है, अच्छा है बुक, Okay. ठीक है? प्रेप नोवा, Yes. वो ले सकता है तू. या तो Okay. तू ये ले सकता है, बैरेंस मत लेना, बैरेंस बहुत सिंपल है. Okay. प्रेप नोवा ले ले, एक अच्छा है. मैनहट्टन तो तूने देख लिया. प्रेप नोवा, प्रिंसटन करके एक बुक आता है, प्रिंसटन, बहुत अच्छा बुक है. Princeton review. हाँ, प्रिंसटन रिव्यू, उसका भी वर्बल का आता है, वो कर लेना. तो लेकिन Yes. जब भी करे एक चीज याद रखना, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट. Yes sir. वर्ड तो Exactly. यार कोई बड़ा चीज नहीं है, वर्ड कोई भी रट लेगा, Yes. समझा ना? एक्चुअली हाँ, जो हाँ. मुझे वही डिफरेंस लगा ईटीएस के क्वेश्चंस में, हाँ. क्योंकि वहाँ का लॉजिक थोड़ा हार्ड रहता और हाँ. वोकैबुलरी मीडियम रहता, लेकिन ये vocabulary medium मैनहट्टन रहता है, वालों का लॉजिक बहुत इजी है और vocab वोकैबुलरी hard मींस रहता आउट है. ऑफ द करेक्ट वर्ल्ड. करेक्ट. लेकिन जीआरई में बैलेंस्ड आएगा. थोड़े क्वेश्चंस ओके. वैसे होंगे जिसका vocab हाई होगा ऑप्शंस का, लेकिन यस. क्वेश्चन सिंपल होगा. तो ये मिक्सचर होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस. तो मैनहट्टन भी ओके. कर लेना, छोड़ना मत, इट्स अ डिसेंट बुक, है ना? यस सर. बट यस. वोकैबुलरी जिसका स्ट्रांग है, याद रखना, उसको मैनहट्टन फालतू लगेगा. यस सर. हाँ, क्योंकि वर्ड्स मालूम है, 6 में से 5 ऑप्शन मेरे को मालूम है, तो बचा ही क्या ना सवाल में, है यस. कि नहीं? मैं करता हूँ, मैं एसटीसी ना, मैं तेरे को बताता हूँ ना, मेरे को सारे ऑप्शन पता होते हैं ऑलमोस्ट एवरी टाइम. मतलब मैं 1% डाउट देता हूँ खुद को, थोड़ा मॉडेस्टी रखने के लिए. बट देन मेरे को 5-6 ऑप्शन पता ही होता है, तो फिर मैं सवाल पढ़ू ना पढ़ू फर्क नहीं पड़ता. फिर भी मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ. क्यों? वो कॉन्टेक्स्ट क्रैक करके समझ के फिर आंसर बैठाओ ना, वो एक नशा है. समझ आ रहा है? यस सर. हाँ, इट बहुत प्लेजर, इट गिव्स यू प्लेजर, मजा आता है एकदम. यस सर. ठीक है? यस सर. थैंक यू. ओके, या थैंक यू अभिषेक, थैंक यू. चलो अभी आगे बढ़ते हैं, है ना? अभी ये लिखो लास्ट वाला. इफ डायरेक्ट स्पीच इज फॉलोड बाय अ रिपोर्टिंग वर्ब, if direct speech is followed by a reporting verb, a comma is used instead of a full stop before the end quotation mark. If direct speech is followed by a reporting verb, a comma is used instead of a full stop before the end quotation mark. अभी एग्जाम्पल देखो, उसका नीचे दिया है, I will not tolerate this, said the butler. करेक्ट? कॉमा अभी कहां पे यूज हो रहा है? कॉमा इज इनसाइड द डबल इन्वर्टेड कॉमास.
समझ रहा है कुशल? हाँ सर. ये रूल लिख के लो एंड देन विल मूव अहेड. Okay, so next slide. Next rule, guys. There are lot of rules in direct indirect speech. Remember, huh? Direct indirect speech में बहुत सारे rules हैं. So लिखते रहो. Next rule ये रहा. Quotation marks are used in indirect speech when there are quotations inside quotations. Double quotation marks are used inside and single quotation marks are used outside or vice versa. कुशल चिन्मय ये रूल देखो मैं जो कह रहा था दिख रहा है ये. Yes, sir. रीता said he told me I will miss you. क्या बुलशिट है ये सेंटेंस. ठीक है, तो अभी इसमें क्या किया है देखो. he told me कॉमा फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है I will miss you and then डबल इन्वर्टेड कॉमास. ठीक है. Yes sir. चलो लिख के लो. कुछ डाउट हो तो पूछना वरना लिखते रहो. डन हो गया गाइस. हाँ सर. अभी अगला टाइटल दो इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच. सर 1 मिनट लास्ट स्लाइड दिखाना. एक ही हाँ second. हाँ 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 हाँ. ठीक है सर. ओके चलो. इनडायरेक्ट स्पीच सिंपल है. जो डायरेक्ट स्पीच में हमने डिस्कस किया उसका सीधा ऑपोजिट. कोट सारे निकल जाएंगे. नो डबल इन्वर्टेड और सिंगल इन्वर्टेड कॉमास. कुछ भी जरूरत नहीं है ना, याद रखना. So when people's actual words are reported without using their exact words, the sentence construction is called indirect speech. Example देख लो. कुछ डाउट हो तो मुझे पूछना. अभी चिन्मय एंड कुशल मुझे एक बात बताओ. एक्टिव वॉइस में हमने एक रूल पढ़ा था, याद है? दैट बोथ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कैन नॉट बी देयर इन अ सेंटेंस ना. यस सर. अगला रूल दिख रहा है वो भी यही नहीं है, सिमिलर टू दैट. हाँ. हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों एक साथ नहीं आता. मतलब ये नहीं बोलने का आई सेड आई एम हंग्री. ठीक है, ये गलत है ये. तो करेक्ट क्या होगा? आई सेड आई वाज हंग्री. इसका मतलब है ये इनडायरेक्ट है. करेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच. लेकिन डायरेक्ट में कैसा होगा? इन्वर्टेड कॉमास में. ये चीज है.
ओके नेक्स्ट, ये रूल लिख के लो। अभी कन्वर्जन के रूल्स हमको पता होना चाहिए, वी ऑल शुड नो दिस। मतलब अगर डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में क्या क्या रूल्स है वो नहीं पता चलेगा तो फिर यू कांट कन्वर्ट ना, एरर होगा फिर उसमें, ठीक है। चलो पहला लिखो रूल, अ चेंज इन द स्पीच एंटेल्स अ चेंज ऑफ द प्रोनाउन। समझा चिन्मय ये क्या बोल रहा है? एंटेल्स अ चेंज ऑफ द प्रोनाउन मतलब व्हेन यू चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच ना, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, तो प्रोनाउन बदल जाता है। तो ये देख, इधर प्रोनाउन आए था ना, वो क्या बना? he, हाँ करेक्ट। तो एक बार एग्जाम्पल पढ़ो, तुमको समझ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। राइट इट डाउन। ये कन्वर्जन के रूल्स पता होने चाहिए गाइस। अरे दिस इज लाइक, इज इट नॉट लाइक किलोमीटर टू मीटर 1000 से मल्टीप्लाई करो, है कि नहीं बताओ मुझे? हाँ सर, वही है ना, एनालॉजी दू तो। इंजीनियर्स हम ग्रामर में भी मैथ निकालते हैं, है कि नहीं? डन गाइस, हो गया लिख के? चिन्मय कुशल हो गया? सर 1 मिनट। हाँ हाँ हो गया। ये सारे रूल्स याद रखो गाइस, दीज रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो पहला रूल ये है, when you convert a sentence in a direct speech into an indirect speech, there is the pronoun changes, I he बन जाता है। अभी यहाँ पे मैन के जगह वुमेन होता तो शी बन जाता, समझ आ रहा है ना? वो ध्यान रखना, ठीक है? जेंडर, जेंडर स्पेसिफिक है वो। चलो हो गया, आगे बढ़े। यस सर। अगला रूल लिखो, सेकंड रूल, there is a change of time and place with a change in the speech. There is a change of time and place with a change in the speech. So for example दिया है, some words like here and now are dropped in indirect speech. मतलब डायरेक्ट स्पीच में देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, क्या है? टेड सेड आई डोंट फील कंफर्टेबल हियर। इनडायरेक्ट इसका क्या होगा? टेड सेड दैट ही डिड नॉट फील कंफर्टेबल। अभी यहाँ पे ऑप्शन है ना देयर लिखने का, हियर का देयर करने का, है कि नहीं? बट वो देयर नहीं लिखोगे तो चलेगा, इसलिए लिखा है कैन आर ड्रॉप्ड। समझ आया? अरे मतलब इट इज अंडरस्टूड ना, इट इज लाइक वो टेररिस्ट वाला, द सिटी वाज बॉम्ब्ड, हाँ वैसा। अभी नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है देखो, टेड इज नो लॉन्गर एट द प्लेस वेयर ही डज नॉट फील कंफर्टेबल, सो हियर इज नॉट यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच, करेक्ट? इसका मतलब क्या है समझ रहे हो? इनडायरेक्ट स्पीच में अगर मैं लिखता तो मैं क्या लिखता? ही टेड सेड दैट ही डिड नॉट फील कंफर्टेबल देयर, मतलब करेक्ट? देयर का मतलब क्या हुआ कुशल? उधर ना, उधर। हाँ अब उधर अगर मैं बोल रहा हूँ मुझे उधर कंफर्टेबल नहीं लगता है, इसका मतलब ये है ना कि मैं वो प्लेस पे नहीं हूँ, करेक्ट?
हाँ, so if I'm no longer there, why will I write here or there? समझ आया? वही चीज वहां पे नीचे एक्सप्लेन कर रहा है. And next rule is very important. अगला बहुत important है. Other words that denote time and place are last, next, yesterday, tomorrow. इसका तुमको पता होना चाहिए. This is very important. ये पूरा स्लाइड लिख के लो, खत्म हो गया. Examples, and we will stop after this. We'll continue in the next class. So next month indirect speech में बन गया the next month. Last Monday becomes the Monday before. Yesterday becomes the day before. ये conversion याद रखो, ये पता होना चाहिए. Tomorrow क्या बनता है? किसी को idea? The day after or the next day. ये पता है सबको? Is this clear to everyone? सर फॉरबिन मंथ भी लिख सकते हैं ना? क्या? फॉरबिन मंथ, Foreign month? फॉलोविन, हाँ, फॉलोविन following. मंथ. हाँ, चलेगा, Yes. चलेगा. यस. चलता है, चलता है. Upcoming नहीं लेने का. हाँ सर. घर का खेती नहीं. हाँ, ठीक है. What? Guys, लिख के हो जाए तो बताना. Okay, Chinmay says done. What about others? Divya says done. Okay, yeah, take your time. What about others? Milan done. Okay. Jayanti, Abhishek, Pramod, Pankaj. Okay. What about the girls? Samruddhi, Vaishnavi. Done. Okay. कुशल हो गया? हाँ सर. चलो ठीक है. So we'll end today's class. Okay, guys. I'll see you in the next class. Keep studying until then. Stay safe. Okay. Revise sir. करते रहो, revision करते रहो. चलो. I hope you enjoyed. Enjoy your Yes, Sunday. sir. Take care, guys. Bye. Bye. बाय सर. Welcome, Divya. Welcome. Welcome, Abhishek.